Good morning to everyone. In the last lecture, as I told you, we have discussed the import of goods, transactions related to import of goods. Today we will start with export. We will see the transactions related to export of goods. So first the transaction when goods or raw material is sold, and this sale is export sale. This sale is when we sell outside the boundaries of the country. So what will happen? Whom will we sell? We will sell to foreign customer. It will be a foreign customer whom we will be selling the goods, or you may say debtor also. Account debit. To what is it? This is sales. This is sales. You may write only sales or export sales. This is the first entry. We have sold goods to a foreign customer, and this is sales. Normally, see from 11th standard, when we write the sales always comes in the credit side because sales is a income. हम लोग सेल्स क्रेडिट में लिखते हैं और अभी तक हमने एक्सपोर्ट का पैसा नहीं मिला है. वी हैव नॉट रिसीव द मनी, सो वी हैव रिटन द नेम ऑफ द पर्सन और द कंपनी टू whom वी विल सेल. जिसको हमने बेचा है उसका नाम लिखेंगे, एंड दिस इज सेल्स. सेल्स कम्स इन द क्रेडिट एज इट इज अ इनकम. क्रेडिट और इनकम एंड gain, so it is in the credit. So we got our first entry. Second entry will be for receipt of payment. For receipt of amount या receipt of payment, यहाँ पे हमें पैसा मिलेगा. एक्सपोर्ट में क्या होता है? व्हेन वी डू एक्सपोर्ट, व्हेन वी सेल गुड्स आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री, वी रिसीव द अमाउंट. Receipt of amount related to export sales. So जो पैसा मिलेगा तो what will come in? When we will receive cash or check, what will come in? Cash. So cash bank account debit to who will pay the amount? Foreign. We'll take it one line. Foreign customer, or we can say debtor. जब पैसा नहीं दिया था तो दिस फॉरेन कस्टमर वॉज इन द डेबिट. अब जब इससे पैसा मिल जाएगा तो इट विल बी द ऑपोजिट एंट्री इन द क्रेडिट. लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. जिस दिन एक्सपोर्ट का ट्रांजैक्शन हुआ था उस दिन $1 was equal to suppose 50 rupees. But when we receive the money, $1 is equal to 45 rupees. हमने सोचा था जब हमको पैसा हमने जब एक्सपोर्ट किया था तब हमने सोचा था हमें $1 के एक्सचेंज में 50 रुपीस मिलेगा.
लेकिन the day when we receive the money, receive the amount, receive the payment, $1 is equal to 45 rupees. मतलब यहाँ पे फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से हमें जहाँ पे $1 का 50 रुपया मिलना चाहिए था, बिकॉज ऑफ द करेंसी फ्लक्चुएशन, आज जब हमें पैसे मिल रहे उस दिन $1 इज इक्वल टू 45 रुपीज। हमारे हिसाब से हमें $1 का 50 मिलना चाहिए था, लेकिन हमें $1 का सिर्फ 45 मिल रहा है, तो इट इज अ लॉस ड्यू टू फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. Whenever we do import or export, what happens, there is a foreign currency involved, and foreign currency का value तो रोज चेंज होता है, एवरी मिनट चेंज होता है, जिसके वजह से जो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएट होती है उसके वजह से हमें लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी. लेकिन हमें लॉस हो या प्रॉफिट हो तो हम कौन से अकाउंट को इफेक्ट देते हैं? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. कौन से अकाउंट को इफेक्ट देते हैं? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट कब होता है? डेबिट होता है व्हेन इट्स अ लॉस. इफ इट्स अ लॉस, व्हेन इट्स अ लॉस हम क्या करते हैं? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट. लॉस कैसे हुआ? हमने जब ट्रांजैक्शन किया था $1 वॉज इक्वल टू 50, बट जब हमें पैसा मिला $1 इज इक्वल टू 45. तो जहाँ पे हमने एक्सपेक्टेशन $1 से 50 रुपीज़ मिलेगा किया था, बट हमें सिर्फ $1 से आज जब पेमेंट मिल रहा है वी आर गेटिंग ओनली 45 रुपीज, सो इट इज अ लॉस. नाउ इट कैन बी अदर वे अराउंड ऑल्सो. When we had done the transaction, we had expected $1 will give us rupees 50, but today the exchange rate is $1 is equal to 55. $1 is equal to 55, so we are getting more than the expectation, so it becomes a profit. It becomes a profit. One तो profit होगा तो what we will do? Foreign exchange fluctuation account को we will give the credit effect when it's a profit. We will give a credit effect when it's a profit, because foreign exchange fluctuation account is a nominal account. It has to be debited when there is a loss. It has to be credited when there is a profit, because the rule says debit all expenses and losses, credit all income and gain. Credit all income and gain. So this is the entry. Now for receipt of amount related to export is done. Now let us see some year end adjustments. Year end adjustments. So year end there may be two things what we have to understand. Year end में first सबसे पहले we have to understand about notional profit. Notional profit. Now what is this notional profit? ईयर एंड में हम क्या करते हैं? हम ऐसे ट्रांजैक्शंस को देखते हैं जिसका अभी भी कुछ पैसा मिलना बाकी है. दिस इज अ एक्सपोर्ट. मतलब सपोज मैंने $1,00,000 का रॉ मटेरियल दूसरे कंट्री में सेल किया. $1,00,000 का रॉ मटेरियल मैंने दूसरे कंट्री में सेल किया. दूसरे कंट्री में सेल किया. $1,00,000 का रॉ मटेरियल मैंने दूसरे कंट्री में सेल किया. दूसरे कंट्री में सेल किया. तो व्हाट हैपेंस कि मुझे वहाँ से अभी पैसे मिलने चाहिए.
because I have sold, because I have done an export sale, I should get money. Suppose मुझे $75,000 का पैसा मिल गया एंड ईयर एंड में अभी भी $25,000 का पैसा मिलना बाकी है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ईयर एंड में जो भी रेट है डॉलर का उसके साथ अज्यूम करती हूँ कि सपोज मुझे इतना पैसा, वो जो 25,000 मिला नहीं है, सपोज आज मिल गया, आई अज्यूम, एक्चुअली में मुझे नहीं मिला है, आई अज्यूम कि ये पैसा मुझे मिल गया एंड उस दिन एक्सचेंज रेट है सपोज $1 इज इक्वल टू 55, उस दिन एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 55, और जब मैंने ये ट्रांजैक्शन किया था उस दिन $1 वॉज इक्वल टू 50, $1 वॉज इक्वल टू 50, बट ईयर एंड में क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू 55, मतलब मैं आज अज्यूम करती हूँ मुझे पैसा मिल गया, तो मुझे 50 के बदले में 55 मिलेगा, मिल रहा है, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है। तो इसका क्या एंट्री रहेगा, किससे पैसा मिलेगा हमें, फॉरिन कस्टमर से, किससे मिलेगा, फॉरिन कस्टमर और डेटर, you may write any of the one, account डेबिट, और यहाँ पे हमें एक्चुअल में पैसा नहीं मिल रहा, हम अज्यूम कर रहे कि आज हमें अगर मिल जाए तो हमें ₹5 का प्रॉफिट होगा, फॉरिन प्रॉफिट होगा, तो फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, दिस इज फॉर द नोशनल प्रॉफिट, कोई पैसा नहीं पे मिल रहा है मुझे, जस्ट अज्यूम किया अगर मिल गया तो क्या होगा, हमने जो एक्चुअल एंट्री किया था उस दिन डॉलर था 50, $1.50, एंड आज ईयर एंड में इट इज 55, तो मुझे ₹5 का प्रॉफिट हुआ है, तो इट इज नोशनल प्रॉफिट। सेम वे अभी वी विल डू अ एंट्री फॉर नोशनल लॉस, ऑपोजिट एंट्री, नोशनल लॉस, इसमें क्या होता है, ईयर एंड में हम क्या, हमने खरीदा था $1.50 में, बट ईयर एंड में रेट है $1 इज इक्वल टू 45, तो जहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था मुझे $1 से ₹50 मिलेगा, लेकिन आज रेट है डॉलर का 45, तो 50 के बदले में 45 मिल रहा है, तो कम मिल रहा है, तो लॉस होगा, तो हम क्या करेंगे, फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू फॉरिन कस्टमर और डेटर account. So this is the entry for notional loss. Now what we will do, now now the entry what we will do is, ये हमारा थर्ड वन था, थर्ड एंट्री था, now we will go to the फोर्थ वन, ईयर एंड में ही नोशनल, ईयर एंड में ही नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस हो सकता है, और एक होता है ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस ऑफ FEF अकाउंट, FEF क्या है, इसका फुल फॉर्म लिखती हूँ, फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन अकाउंट, इसको हम ब्रैकेट में FEF अकाउंट भी बोल सकते हैं, इसको हम FEF भी बोल सकते हैं, फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, फॉरिन का F
एक्सचेंज का ई और फ्लक्चुएशन का एफ अकाउंट भी बोल सकते हैं। तो इसका बैलेंस जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो व्हाट वी विल डू, एक एफ अकाउंट बना देते हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो एफ अकाउंट बनाया फॉर द अंडरस्टैंडिंग। तो क्या होगा, यहाँ पे डेबिट ऑफ एफ अकाउंट में अगर एक्सपेंस या लॉस होगा, एक्सपेंस या लॉस मतलब डेबिट लिखना है, और प्रॉफिट या गेन मतलब क्रेडिट। क्या होता है एफ अकाउंट में, अगर एक्सपेंस होता है तो एफ को डेबिट करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो एफ को क्रेडिट करते हैं। ये डेबिट होगा तो, अगर लॉस होगा तो डेबिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, इतना समझना है। इसके बाद अब जब हम इसके बैलेंस को ट्रांसफ़र करेंगे तो सबसे पहले प्रॉफिट का देखते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट का देखते हैं। प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा ये साइड ज़्यादा रहेगा, जब हमारा क्रेडिट ज़्यादा रहेगा। प्रॉफिट कब होगा, व्हेन द क्रेडिट साइड इज स्मूथ। प्रॉफिट कब होगा, जब प्रॉफिट एंड गेन दैट इज क्रेडिट ज़्यादा हो। तो वो जो ज़्यादा साइड हो, लेजर में हम क्या करते हैं, जिसका टोटल ज़्यादा रहता है वही टोटल हम दोनों साइड में लिखते हैं। अगर हमारा क्रेडिट ज़्यादा है, अगर हमारा प्रॉफिट कब होगा, जब क्रेडिट साइड ज़्यादा होगा, बिकॉज क्रेडिट इज़ द साइड फॉर प्रॉफिट। जब वो साइड ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो है वो डेबिट में आएगा। क्रेडिट ज़्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में आएगा, डिफरेंस विल कम इन द डेबिट। तो वो डिफरेंस को हम किधर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर प्रॉफिट ज़्यादा है तो हमारा जो भी बैलेंस है वो कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। और वो बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, वो बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। वो बैलेंस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो हमारा एंट्री ऐसा रहेगा, नॉर्मली प्रॉफिट है बिकॉज हमेशा बैलेंस एंट्री का ऑपोजिट, क्लोजिंग बैलेंस आप हमेशा ऑपोजिट साइड में देखोगे। तो बैलेंस हम एंडिंग में करते हैं, दिस इज लाइक अ क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड में रहता है। तो इसको रीड आउट करते वक्त कैसे करेंगे, एफ के डेबिट साइड में है, एफ के डेबिट साइड में है तो एफ डेबिट में आएगा। फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। और एक चीज़ मुझे बताओ, जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में आएगा। कैसे, ये देखो, नेट प्रॉफिट हमेशा डेबिट में आता है, लेकिन प्रॉफिट मीन्स इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। तो पीएनएल अकाउंट में ये 2 पीएनएल अकाउंट हमने लिखा क्योंकि ये क्रेडिट ज़्यादा था, प्रॉफिट ज़्यादा था। और प्रॉफिट सब यहाँ पे डेबिट में, एफ अकाउंट में डेबिट में, और पीएनएल अकाउंट में ये क्रेडिट में रहेगा। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में आते हैं, तो इट विल कम इन द क्रेडिट साइड। तो एंट्री ऐसा रहेगा, एफ अकाउंट डेबिट, क्योंकि एफ अकाउंट के डेबिट में आया है। तो जब लेजर से जर्नल में जाते हैं तो क्योंकि एफ अकाउंट के क्रेडिट में आया है, एफ विल इट विल बी लाइक क्योंकि एफ अकाउंट के डेबिट में आया है, एफ विल बी इन द डेबिट, एंड जो यहाँ पे लिखा है इट विल बी इन द क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, to profit and loss account. This is the entry for profit. Now let us see the entry for loss. Let us see the entry for loss. तो लॉस के लिए क्या करना है, लॉस के लिए क्या होगा, डेबिट ज़्यादा रहेगा। लॉस के लिए क्या होगा, लॉस मतलब ये साइड ज़्यादा रहेगा, डेबिट साइड ज़्यादा रहेगा। तो डिफरेंस किधर आएगा,
डिफरेंस क्रेडिट में आएगा और ये डिफरेंस को बोलना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डिफरेंस को बोलना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लॉस रहेगा तो लॉसेस सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आता है। लॉसेस सब किधर आता है? लॉसेस एंड एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में रहता है। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में रहता है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट के क्रेडिट में है? एफईएफ अकाउंट के ये क्रेडिट साइड में है तो ऑपोजिट साइड में आएगा फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन account, foreign exchange fluctuation account. So this is the entry for year end में loss. Now we will go to the fifth entry. देखो हमने क्या किया, हमें कंपलसरी है ईयर एंड में एक तो अगर कोई बैलेंस का अभी भी पैसा मिलना बाकी है तो उसका नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस निकालना, और ईयर एंड में फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को बंद करना भी ज़रूरी है। फॉरिन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट को बंद करना भी ज़रूरी है। तो इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है, द नेक्स्ट एंट्री इज फॉर फॉरिन ईयर नेक्स्ट ईयर receipt of amount on export sales। अभी हमने जो यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस निकाला वो क्यों निकाला हमने? क्योंकि पूरा पैसा मिला नहीं है। 1 लाख का गुड्स मैंने सेल किया और उसमें मुझे $75 का पैसा मिल गया, लेकिन अभी भी $25,000 का पैसा मिलना बाकी है। $25,000 का पैसा मिलना बाकी है। पैसा मिलना बाकी है तो वो हमने नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस निकाला, लेकिन अभी नेक्स्ट ईयर में उसका पैसा हमें अभी नहीं मिला, बट नेक्स्ट ईयर में तो मिलेगा। तो नेक्स्ट ईयर में जब वो पैसा मिलेगा तो क्या होगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा मिल रहा है ना, पैसा मिला। अब दो चीज हो, अब पैसा जिससे मिला तो उसको तो क्रेडिट करेंगे। किससे मिला? फॉरिन कस्टमर से, या वी कैन से डेटर, बिकॉज पैसा पहले नहीं दिया बाद में दे रहे, फ्यूचर में दे रहे, तो फॉरिन कस्टमर बोलो। एक कस्टमर को हम डेटर भी बोलते हैं इन अवर कॉमर्स और अकाउंट्स लैंग्वेज। तो अभी दो चीज़ें हो सकती है, एक तो हमें और एक चीज़ हमें रखना है, अभी हमें किससे कंपेयर, जब मैंने ये ट्रांजैक्शन किया था तब $1 वॉज इक्वल टू 50, बट मुझे अभी वो रेट को नहीं ध्यान में रखना है। ईयर एंड में मुझे नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस हुआ है उस दिन मैंने जो रेट को कंसिडर किया है, अभी मुझे वो रेट से ही कंपैरिजन करना है। समझ में आया? ईयर एंड में जब मैंने नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस का एंट्री पास किया उस दिन जो रेट है अभी मुझे वही रेट से कंपैरिजन करना है। सपोज आज जब पैसा मिल रहा है, एक्सचेंज रेट इज $1 इज इक्वल टू 50, $1 इज इक्वल टू 50, बट नोशनल लॉस हुआ था हमें उस दिन, डॉलर था 1 लाख। $1 is equal to suppose $1 is equal to कितना था? $1 is equal to 52 था,
$1 इज इक्वल टू 52 था ईयर एंड में, लेकिन आज $1 है इक्वल टू 50, $1 है इक्वल टू 50। तो 52 से आज 50 हो रहा है, मतलब उस दिन हमें $2 एक्स्ट्रा मिलना, $2 का ₹2 एक्स्ट्रा मिलने वाला था, पर आज हमें कम मिलेगा, तो लॉस होगा। जहाँ पे हमें $1 का ₹52 मिलना चाहिए था, हमें $1 का सिर्फ ₹50 मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, लॉस का एंट्री पास करेंगे। लॉस होगा तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन लॉस के टाइम पे डेबिट में आता है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। लॉस होगा तो डेबिट, ध्यान में रखना, लॉस होगा तो डेबिट, और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। प्रॉफिट कब होगा, आज $1 है ₹50, और सपोज $1 जब हमने नोशनल प्रॉफिट नोशनल लॉस किया था तो $1 ₹50 था, आज हमारा एक्सचेंज रेट है ₹55, तो हमें एक ₹5 एक्स्ट्रा मिलेगा, हमें ₹5 एक्स्ट्रा मिलेगा, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट होगा, देखो इन द एक्चुअल सम या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अब बिकॉज हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं तो मैं तुम लोग को दोनों चीज़ बता रही हूँ, प्रॉफिट भी लॉस भी, बट इन द सम या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, दोनों नहीं हो सकता, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। इसके साथ वी आर डन विथ ऑल द एंट्रीज रिलेटेड टू export. We are done with all the entry related to export. With this I will end this lecture.